मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर की पाठशाला। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और ट्वेल्थ फिजिक्स की यूनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट. What is electrostat? Actually, it is the branch of the physics that deals with the study of the charges that are at rest and also its effect, like electric field. This is called electrostatics. Now, what is charge? Charge is something that is associated to the material that make possible for them to exert the force on the surrounding charges that can experience the electric force due to surrounding charges. Exert force on the surrounding charge and can experience the electric force due to surrounding charge. Also exerts the force and also experiences the force, that is the charge. This was a very basic two definitions. Now moving further, now the formulas came. When the current is uniform, I is equals to q by t. On resolving, we get q is equals to I into t, where q, I, t have regular meaning. Q for charge, I for current, and t for time. Okay, now for non-uniform current, I is equals to dq by dt. Integrating, we get q is equals to integral of t1 to t2 I dot dt. Now what's the SI unit of the charge? The SI unit of the charge is coulomb. CGS unit, stat coulomb, and 1 coulomb is equals to 1 ampere into second. As you can see from here, the SIQ is equals to I into T, I ampere, and for time seconds. So Q is equals to ampere second, 1 coulomb. Okay, and what is this stat coulomb? Stat coulomb is 3.3356 into 10 to the power minus 10 coulomb. Okay, now the properties. First property, charges have additive properties. That is, suppose there is given q is equals to q1 is equals to minus 1, q2 is given plus 2, and q3 is given minus 4. So what you will do basically is q is equals to minus 1, q is equals to plus 2, and q is equals to plus 4. 1, 2, and 3. Additive property means you have to add all the charges, like q is equals to q1 plus q2 plus q3. Q is equals to, what is q1? Minus 1, then minus 1, plus 2, simply 2, plus 4, plus 4. That means you not have to add them. Actually में you have to add, simply add. Then q is equals to 6 minus 1, and q is equals to 5. Actually basically this was given the additive property, that is q is equals to q1 plus q2 up to infinite. Okay, now second, charge is quantized. What is what is mean by quantized? That it actually there is one rule, that is quantization of charges, which means that charge exists only if it is in the form of integral multiple. Suppose it is given any charge q is equals to 1 by 5, it will not exist, because
it is not in the integral multiple. Q is equals to 1, yes, it will exist. Q is equals to 2, it will exist. Q is equals to 2 by 5, no, it will not exist. Okay, same I have also written here. Okay, now third property, that is charge is conserved. According to the law of conservation of charges, that is, in an isolated system, the net charge of the system remains constant. Constant means conserved, simply conserved. Fourth property, the charge is always associated with the mass. If the body becomes relatively more positive, the mass of the body decreases. It is simply understandable. Now comes the numerical. 4 ampere of current is maintained through a conductor from t is equals to 5 seconds to t is equals to 8 seconds. Find the amount of charge flown through the current during this time. Okay, तो I कितना दिया है 4 एम्पियर, T1 कितना दिया है 5 एंड T2 कितना दिया है 8 seconds. What we have is we have any relation between Q, I and T? Yes, we have. Q is equals to IT. This is the relation we have studied. So substituting all the values, तो T यहाँ पे कैसे निकलेगा? The value of the T would be T2 minus of T1. तो Q is equals to 4 into 8 minus 3, 4 into 3, that is Q is equals to 12 coulomb. Okay, let's see the solution. Yes, 12 coulomb is the 12 ampere is the answer. 12 coulomb, actually it would be coulomb. Now second question, the current is maintained through a conductor I is equals to 2t plus 2 ampere. Find the amount of the charge flown from t is equals to 2 seconds to t is equals to 4 seconds. अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखो तो करंट क्या है t के साथ आ रहा है, that is current is the function of time. That means current is not constant. Current is variable here. It is not constant. The value of the current would change as the value of the time changes. So what we'll do? We'll simply put the formula Q is equals to integral I dot dt, लिमिट, सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, लिमिट्स क्या होंगी 2 से 4, 2t plus 2 dt, या इंटीग्रल 2 4. उसके बाद इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. Q is equals to integral 2 4 2t plus 2 था, तो Q is equals to, इसको सेपरेटली अगर सॉल्व करें तो 2 आयान बाहर निकाला, t 2 4 t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रल करेंगे प्लस 2 और ये t हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 4 में. तो Q is equals to 2 4 स्क्वायर 16 by 2 minus 4 2 2 plus 2 4 minus 2, simply solving 2, तो Q is equals to आ जाएगा यहाँ पे
14 कूलम। ठीक है, अब आगे आंसर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहा, Q इज इक्वल्स टू 14 कूलम। नाउ नेचर ऑफ द चार्जेस, ये बहुत सिंपल, ये बहुत छोटे से हमको पता होता है। नेचर ऑफ चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्जेस मीन्स एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी हमको बहुत अच्छे से पता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चार्जिंग पे। चार्जिंग क्या होती है? चार्जिंग द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्जिंग हो जाएगी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक और हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, उसके पहले हम ये पढ़ते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक एनर्जी होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली that is required by the electrons for the ejection of the electron from the material of any body। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, इसी 12th में ही। आगे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखना है, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी और फ्रॉम अ मटीरियल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, रबिंग ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ टुगेदर। इसमें क्या होता है, ये ग्लास ट्यूब है हमारा, और एक ये हमारा एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, अब इसको हम इसमें रब करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो जिसकी वर्क, ये सिल्क क्लॉथ है और ये ग्लास रॉड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी वर्क फंक्शन जो है वो कम होगी। तो वर्क फंक्शन जिसकी कम होगी वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसमें वर्क फंक्शन किसकी कम होगी? ग्लास रॉड की। वर्क फंक्शन ऑफ द ग्लास रॉड इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्क क्लॉथ। तो जब इसको हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इसको हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे, रब करेंगे यहाँ पे, तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपली इसके बाद आ जाएगा कि ग्लास रॉड में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बच जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या था? सिल्क क्लॉथ में, और ये ग्लास रॉड। क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास रॉड की जो वर्क फंक्शन थी वो कम थी सिल्क क्लॉथ से। सिल्क क्लॉथ की अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा होगी तो सिल्क क्लॉथ पहले छोड़ता, तो उसके बाद उसके पास कैसे आते? पॉजिटिव आ जाते। सिल्क क्लॉथ के पास पॉजिटिव आ जाते। अभी इस केस में ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव आए। ठीक है, अब आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में मेन चीज़ फिजिकल कांटेक्ट रहता है। फिजिकल कांटेक्ट होता है। एक चार्ज अपना चार्ज छोड़ेगा, दूसरे चार्ज के, एक चार्ज अपना छोड़ेगा दूसरा गेन करेगा। एक में चार्ज कम नेगेटिव माइनस में होगा, एक में पॉजिटिव में होगा। जो न्यूट्रल है उसमें गेन होगा और जो पॉजिटिव था उसमें लॉस होगा। और इसमें कंडक्शन में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में।
टोटल मास, टोटल जितना चार्ज होता है एक बॉडी का दूसरे बॉडी में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 50-50 ज़रूर जाएगा। ठीक है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B carrying charges -q and +10q and -4q respectively. ठीक है। And the third identical conducting sphere C, which is initially uncharged. First C touches the A and then touches B, and then B and C are touched. उसके बाद A B दोनों टच होते हैं, तो फाइनल चार्जेस निकालना है। फाइनल चार्ज क्या होगा? ठीक है, तो पहले केस में इसको हम लोग केस वाइज सॉल्व करेंगे। पहले केस में कौन कैसे होगा? पहले केस में ए और बी टच हो और ए और सी टच होते हैं। ए में कितना चार्ज था हमारा? -4 क्यू। तो इसमें अब ए में कितना बचेगा? -q, -2q। और सी में कितना बचेगा? -2q। ये कैसे आया? ये न्यूट्रल चार्ज था, ये न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। ये ए से आके मिला और ए ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास तो कम है, तुम्हारे पास है ही नहीं, लो हम तुमको दे देते हैं। तो इसने अपना आधा चार्ज उसको दे दिया और आधा खुद रख लिया। यही होता ही है चार्जिंग बाय कंडक्शन में। जब भी दोनों के बीच, किसी भी दो चार्जेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो जिस बॉडी के पास चार्ज होगा वो आधा चार्ज खुद रखेगी और आधा दूसरे को देगी। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आ गया? पहले केस में -2q और सी में आ गया -2q। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या था? बी और सी का। इसमें क्या होगा? अब तो सबको आइडिया पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, बी में क्या होगा और सी में क्या होगा। बी में कितना था? 10 था। बी में 10 था। सी में कितना था? अगर तुम लोग सोचो कि न्यूट्रल था तो नहीं, सी में कितना था? -2 आया था। ये देखो यहाँ पे -2 आया है कि नहीं आया है? सी में -2 आया, तो यहाँ पे भी -2 चार्ज होगा। ऐड करो कितना आएगा? 8 आएगा। तो टोटल कितना चार्ज है? 8 चार्ज हुआ, 8 कूलम। तो 8 कूलम को डिवाइड करो, तो डिवीजन में कितना आएगा? एक के पास 4 और एक के पास 4, तो दोनों के पास कितना आ गया? +4q और +4q। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या कह रहा है? ए और बी दोनों टच करते हैं एक दूसरे को। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, और जो केस 2 था ना सी वाला, सी में -2q आ गया था, वही मेन ट्रिक है इसकी। बाकी तो पूरा क्वेश्चन बहुत सरल है। अब आओ इसमें ए में और बी में, ए और बी टच करते हैं। अब इसमें कौन बताएगा? इसमें ए में चार्ज क्या होगा और बी में चार्ज क्या होगा? इस पे ए में चार्ज कितना आया था हमारा? -2q आया था। अभी पीछे हमने -2q निकाला था ना ए का केस 1 में, जब ए सी टच होते हैं, -4 कूलम, -4q था, डिवाइड होगा -2 और बी में कितना था? बी में 4 था, 8 था, तो 4 नहीं हुआ था। तो इसमें कितना होगा? इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों में +q और +q आ जाएगा। तो फाइनल चार्जेस ए, बी और सी में कितना हुआ? +q और +4q। तो दोनों आंसर फाइनल चार्ज ऑन ए +q, चार्ज ऑन बी
plus q and charge on C is plus 4q. ठीक है, अब आते हैं थर्ड चार्जिंग पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता था, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, फिजिकल कांटेक्ट होता था, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो चार्ज लॉस बाय द इंड्यूसिंग बॉडी, मतलब पहले वाले में 50-50 हो रहा था, ए ने बी को दिया तो ए का 50% कम हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। द साइन ऑफ द इंड्यूस चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूस चार्ज। जैसे इसमें हमारा आ रहा था कि ए बी दोनों का जो टोटल चार्ज था वो 2 था, तो ए में और बी में 1-1 बचा, 1 कूलम प्लस 1 कूलम, और बी में भी प्लस 1 कूलम। इसमें अगर ट्रांसफ़र होगा तो ए पे अगर बचेगा तो ए पे आएगा -1, बी पे आएगा +1, या बी में आएगा -1 और ए में आएगा +1, मतलब कि अपोजिट चार्जेस ही रहेंगे, सेम चार्ज नहीं रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज लेस देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज। मैग्नीट्यूड जो होगा, ए ने अगर बी को चार्ज दिया है तो या तो ये बराबर होगा या तो इससे कम दिया होगा। अपने से ज़्यादा, जैसे इसके पास +2q है और ये इसको यहाँ पे दे दे 5q + 5q, पॉसिबल है? नहीं दे पाएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने देखा कि वह 500 किलोमीटर दूर तुमने देखा एक स्टार है, वो तुम्हें कितना दिखेगा? बहुत छोटा दिखेगा, एक पॉइंट के बराबर का दिखेगा। एक पॉइंट की छोटे से इतने, जो ये मैंने अभी पेन से बनाया, ये इतना बड़ा दिखेगा तुमको, पॉइंट का इतना बड़ा दिखेगा, इससे ज़्यादा दिखना नहीं। और वहीं तुम अगर उसको 5 मीटर से देखो, 1 मीटर से देखो, फिर जितने मतलब पास जाओगे उतना बड़ा दिखता जाएगा, उतना बड़ा दिखेगा। वैसे ही सेम इसके साथ भी है। अगर पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? पॉइंट चार्ज उसको कहते हैं कि अगर तुम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखो और डिस्टेंस जो है चार्ज की वो बहुत ज़्यादा हो। 500 किलोमीटर देखा तुमने, 500 किलोमीटर पे तुमको चार्ज क्या देगा? बहुत छोटा पॉइंट टाइप का ही दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। समझ गए? डिस्टेंस जो है वो जब बहुत ही बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द चार्ज, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखिए, व्हेन द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल in comparison to the distance of the observation point from the charge, it will behave like a point charge. अब इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये दिया हुआ है, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस। इसकी लेंथ कितनी है? सपोज L है। इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। यहीं पे अगर नॉन यूनिफॉर्म होता, सिर्फ इतने का निकालना होता, तो 0 to L lambda dot dl, where L is the length of the length of the surface. Okay. Similarly, for the surface charge density sigma, it is represented by the sigma, and it is upon per unit surface. Sigma is equals to Q/A. And similarly for non-uniform distribution, sigma is equals to dq/dA, and Q is equals to integral of 0 to A sigma dot dA.
सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। और हाँ, इनकी जो यूनिट होती है, लैम्डा की यूनिट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती है, कूलम्ब मीटर इनवर्स। सरफेस की क्या होगी, क्यू बाई ए, तो कूलम्ब मीटर इनवर्स का स्क्वायर, क्यों, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। और सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, मतलब सी एम माइनस क्यू, कूलम्ब मीटर क्यूब माइनस में। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप सबको जो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, समझाया क्या होता है, चार्ज के बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें ही कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, हम सब वो उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।